फ्रेंड्स नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वीडियो नॉर्थ ईस्ट के बारे में, और वीडियो का टाइटल है 5 मिसकंसेप्शंस अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो वीडियो पे जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें। तो बहुत सारी बातें कर लेंगे वीडियो के बाद में, तो पहले वीडियो देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। Many of the times, Northeast India and its people are misunderstood by the mainstream society, especially those who have never been to Northeast India or acquainted with the Northeastern people. They have all kinds of preconceived ideas about Northeast India before knowing or experiencing the reality. This video is for those people who have all the wrong concepts about Northeast India. I hope it enlightens you somehow. Misconception number 1. Northeast India is full of jungles and the Northeast Indian live in jungle. Many people after watching our traditional and cultural documentaries made this assumption that we are still living in the 80s and the 90s. No doubt, we preserve our culture and tradition, वो तो खास बात है, but we don't live in a jungle. The truth is, Northeast India is the most modernized and westernized society of the country. Misconception number 2. Northeast Indian can't speak Hindi. Another big misconception. There are states like Arunachal Pradesh where Hindi is a common language. Though our Hindi might not be perfect, majority of the Northeast Indian can understand and speak Hindi. Misconception number 3. Northeast Indian are poor and there are no basic facilities in this region. That is why they go to big cities for higher education and jobs. I would not deny the fact that there are limited jobs here because there are no big companies and industries in Northeast India. But we sure are not poor. There are no slums in Northeast India and you would hardly see any beggars in our region. And if you see one, they either come from Bangladesh or mainstream India. In the future, Northeast might become the richest region of the country. The reason being, they have sufficient natural resources like minerals, wells and gas reserved for the future that are yet to be explored. Misconception number 4. Northeast India is not safe to travel. Many people have this assumption that the moment they landed in Northeast India, they would be shot at sight or be killed or kidnapped. But the truth is just the opposite. It is the most peaceful and safest place in India for both the foreign and the local tourists. People here are kind and friendly. You will be well treated here. Misconception number 5. The last and the most common misconception. Northeast Indian are Chinese. Northeast India bordered with China, Myanmar and Bangladesh. But there is nothing common between us and the Chinese. We are Indian as much as you are. There is no further explanation than this. Well, we have come to the end of the video. I hope by now all your misconceptions about Northeast India are cleared. See you again in the next video. With love from Northeast India. तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो था। अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे बहुत ही कम लोग हैं पर उनकी मेंटलिटी और उनकी सोच बहुत गिरी हुई है, क्योंकि वो दूसरों के लिए कुछ अलग अलग नाम रख सकते हैं। किसी को चिंकी बोलेंगे, किसी को चाइनीज़ बोलेंगे। अगर वही सामने वाला इंसान पलट के तुमको पाकिस्तानी बोल दे, तब क्या तुम उसको जाके कहेंगे नहीं मैं इंडियन हूँ? तो भी वो उतना आपसे ज़्यादा इंडियन है, आपसे कम नहीं है।
तो ये बात जानने की बहुत ज़रूरत है। और ये जो ऐसे मेंटलिटी वाले लोग होते हैं उन पे गुस्सा करने की नहीं, उन पे तरस खाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप उनकी मेंटलिटी और उनका जो नॉलेज का लेवल है वो जान सकते हैं कि वो खुद इंडिया में रह के उनको इंडिया के बारे में पता नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा सर्च का विषय बनता है कि वो इंडियन है या कोई बाहर से आया हुआ है, क्योंकि उसको इंडिया के बारे में पता नहीं है। तो उनको उनका नॉलेज बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे वीडियो निकाल के उनके नॉलेज थोड़ा बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के एजुकेशन और जॉब के बारे में। जिन लोगों को नॉर्थ ईस्ट के एजुकेशन सिस्टम या फिर कितना एजुकेटेड है नॉर्थ ईस्ट उन शक है, तो फिर वो इंडिया के जो जनगणना और अदर सर्वेस देखा करे तो ज़्यादा उनको पता चल जाएगा, या फिर गूगल करे तो भी ज़्यादा पता चलेगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जितने ही इंडिया के टॉप 10 एजुकेटेड स्टेट्स है उसमें ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के ही स्टेट है। और नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में जो सबसे कम क्राइम रेट वाले स्टेट है वहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट के ही ज़्यादातर स्टेट है। और अदर जॉब की बात करते हैं तो इंडिया का हर स्टेट का आदमी एजुकेशन और जॉब के लिए आपको हर जगह पे मिलेगा, भले नॉर्थ ईस्ट के हो या फिर नॉर्थ इंडिया के हो या फिर साउथ इंडिया के हो। वो जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए इंडिया के किसी भी कोने में आपको मिल जाएगी। वो सिर्फ क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग ही जॉब के लिए बाहर नहीं आते। बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री की, तो अभी तक ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी नॉर्थ ईस्ट में, पर अब सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़। और मुझे ये यकीन से मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे रिच एरिया भी बन सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो नॉर्थ ईस्ट में है। और वहाँ पे जब कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी नॉर्थ ईस्ट में, अभी बहुत सारे स्टेट में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ पे कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी बन रही है, हर जगह पे रेल लाइन बिछाई जा रही है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं नए नए, और रोड कनेक्टिविटी भी बहुत बेटर हो जाएगी, क्योंकि अदर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है तो रोड कनेक्टिविटी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। और टूरिज़्म के सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट सबसे संपन्न है। टूरिज़्म जैसे रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी बनेगी तो नॉर्थ ईस्ट यूरोप की कंट्री से कम नहीं है। अदर एक बात सबसे मुझे अजीब लगी कि वो कौन लोग हैं और कहाँ पे रहते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लोग जंगल में रहते हैं, ऐसी बात सोचते हैं, क्योंकि वो खुद जंगल में रहते होंगे और ऐसी जगह पे रहते होंगे जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी, कोई रोड या फिर कोई पे नेटवर्क नहीं होगा, और बहुत अलग थलग पड़ी हुई जगह पे रहते होंगे। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग फैशन, ड्रेस सेंस और लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनकी लाइफस्टाइल किसी भी डेवलपिंग कंट्री से अच्छी है। लोग उनकी तुलना अमेरिका से करते हैं उनकी लाइफस्टाइल की। और वो कौन से ऐसे महान लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जंगल में रहते हैं। तो अपना नॉलेज थोड़ा बढ़ाइए तो बहुत अच्छा है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी सोच गिरी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। और अदर भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं पर अगले वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। और आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हो सके उतना इस चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।